Good afternoon to all the participants and panelists who have joined this webinar. This is a very important webinar titled as Soybean Market Insights, Market Trends, NCCF Disposal and Future Prospects of the Market. So general market insight in the wake of the proposed or the ongoing disposal of soybean procured by government through auction by NAFED and NCCF. So today we are talking more on NCCF disposal. So today this is a very important time for soybean because we have seen last 2-3 years almost since soybean touched a lifetime high of 10,000 plus in India, and since then we have seen a lot of transformation or transition in the market. Market has complete the dynamics in the soybean market has completely changed, and today we are at a stage where Indian markets and global markets are again going to see a major change in direction. So how it will evolve, we are going to discuss that. So today's panel, all the first generation commodity veterans are there in today's panel. I will briefly introduce all the panelists, but before that, let me introduce myself. I am Shrikant Kuvalekar. I am also by profession I am a commodity market journalist or agricultural journalist, but now consultant to World Bank Smart Project for FPOs particularly, and I am a columnist as well on commodity markets. So today my job is to as a moderator, I am here in front of you. So other panelists, which I said, the veterans of commodity market, let me introduce NEML NCDEX E-Market Limited, which is hosting this, which has organized this today's webinar along with NCCF. So that NEML, you all know, the platform is India's largest and oldest electronic auction and trading platform. So managing director of the company, Mr. Praveen Hiremat, is among us today. Welcome, Mr. Praveen Hiremat. Yeah, hi Shrikant. Yeah, hello. And then Mr. Naresh Goenka, who is Deputy Chairman of Soybean Processors Association, Indore-based Soybean Processors Association. Then we have Mr. Ankit Bhutada, who you all know, the Kirti Group, Marathwada's top brand of edible oil and oil seeds. So Kirti Group, the director of Kirti Group, Mr. Ankit Bhutada. I welcome Mr. Goenka and Ankit Bhutada both. Then we have ITC's head of commodity procurement and personal care from Kolkata ITC office, Mr. Kamal Vaid. I welcome Mr. Yeah. Kamal Vaid. Yeah, hi. Sorry, I'm connected late actually. Yeah. We have Mr. PK Vyas with us, who is director of Avi Agri Business in Indore, and also Suraj Impex, who are in, and also member of SOPA again. Yeah. So Mr. Brijbhushan Chitlange, who is Vice President of Gujarat Ambuja Exports. You all know Gujarat Ambuja Exports Limited is one of the top DOC exporters. So this is a panel that we are going to discuss, and from NCCF, I would like to announce here that Managing Director of NCCF, Ms. Anish Joseph, will not be able to make today's event, but Mr. Ritesh Gadasia will be there. There was some PMO's urgent call, because of which MD had to go, and she has deputed Mr. Ritesh Gadasia. So I welcome Mr. Ritesh Gadasia from NCCF. Hi. Hello. Yeah. So these are our eminent panelists. So before proceeding, I would like to hand over the session to Mr. Praveen Hiremat, Managing Director of NEML, who will briefly introduce you about NEML as well as NCCF and what they are doing. So over to you, Mr. Praveen. Yeah, thanks Shrikant. First of all, मैं
सबका स्वागत करना चाहूंगा, एस्टीम पैनल मेंबर्स जो और गेस्ट जो है आज के वेबिनार के लिए। और ये मैं संवाद हिंदी में रखना की कोशिश करूंगा बिकॉज अपने जो पार्टिसिपेंट्स है लार्जली एमपी और महाराष्ट्र से Yes. हैं। तो मेरे ख्याल से जो हम वार्तालाप करेंगे या चर्चा करेंगे और जो विचारों का आदान प्रदान रहेगा वो आसानी रहेगी सबके लिए। तो इसीलिए मैं जितना हो सकता है हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपने जो पैनल मेंबर्स हैं इनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा अपना वक्त निकाल के आज के वेबिनार के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले मैं श्रीकांत जी जो हु ऑलवेज वेयर्स द मल्टीपल हैट्स, नॉट ओनली एज अ बिजनेस एंड कमोडिटी बिजनेस एनालिस्ट जो बट जो जर्नलिस्ट भी है, कमोडिटी जर्नलिस्ट, कमोडिटी रिसर्चर, और इसके अलावा उन्होंने फार्मिंग कम्युनिटी यानी एफपीओस के साथ बड़े नजदीक से काम किया हुआ है बहुत सारे कमोडिटीज में और काफी जानकारी रखते हैं इस सेगमेंट के बारे में। और उनका काफी लेख भी आता है एग्रोवन जो हम सब जानते हैं, बहुत ही प्रचलित मैगजीन है एग्री इसमें। साथ में जो हमारे सो कॉल्ड जायंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है मिस्टर अंकित बुतड़ा, डायरेक्टर कीर्ति एग्रो ग्रुप, देन पीके व्यास जी, एवी एग्रो एंड सूरज इम्पैक्ट्स इंदौर जो कि सोपा मेंबर भी है और डीओसी के बड़े एक्सपोर्टर भी माने जाते हैं। और कमल वैद जी जो आईटीसी प्रोक्योरमेंट हेड है पर्सनल केयर डिवीजन कलकत्ता से, जो ज्वाइन किए हैं वेबिनार के लिए। मिस्टर नरेश गोयंका जी जो कि अगेन डायरेक्टर है सोपा से, और चितलंगे ब्रिजमोहन जी जो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स अकोला के वाइस प्रेसिडेंट हैं। थैंक्स फॉर ऑल ज्वाइनिंग इन। और हमें डिटेल में पता लगेगा इन टर्म्स ऑफ क्या सिनारियो लग रहा है सोयाबीन इंपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट पॉलिसीज, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो चल रही है, और साथ में साथ चर्चा में हम ये भी देखेंगे एडॉक पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट के, इसके प्रतिस्वरूप क्या इम्पैक्ट हो रहा है एज अ कमोडिटी मार्केट में, स्पेशली ऑयल एंड ऑयल सीड्स में, और जो गवर्नमेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ पूरे इंडस्ट्री के दिग्गज मौजूद है, तो जब चर्चा करेंगे तो इसके बारे में और हमको डीप में जानकारी मिलेगी। पहले तो मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगा आज जो हमने वेबिनार किया है जो एनसीसीएफ के साथ में करने की कोशिश की गई है वो ये कि बहुत सारे लोगों को जो है मतलब पार्टिसिपेंट्स को भी एनसीसीएफ क्या है इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो मैं बता दूं कि एनसीसीएफ बेसिकली एक एपेक्स बॉडी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की, विच इज वेरी मच सिमिलर टू योर एर्स्टाइल अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में काफी फैले हुए हैं, जिनके 29 ब्रांच ऑफिसेज हैं और उनका बहुत सारे कार्य करते हैं ये, जैसे जो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट करना होगा, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में इनका काम है। फिर जो अभी लास्ट 1-1.5 साल में इन्होंने जो मेन जो इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर वेबिनार के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो जो मेन एस्पेक्ट्स इन्होंने अंडरटेक किया है वो एक फार्मर प्रोक्योरमेंट है एट एमएसपी, और ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव्स के ग्रोथ के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने हैं और जो कर सकते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके, वो ये कर रहे हैं काफी फोकस्ड वे में। और देखा जाए तो लास्ट 1.5 साल में जो है एनसीसीएफ ने काफी अविश्वसनीय काम किया है। आप देखोगे तो मतलब जो उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है, मे बी ग्राउंडनट, मे बी एनी अदर कमोडिटी, इट हैज बीन प्रीटी ह्यूज। और हम सोयाबीन की बात करें तो लगभग एमपी और योर दिस थिंग महाराष्ट्र में क्लोज टू 5 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खरीदी हो चुकी है, एंड दैट्स अ डिसेंट इनफ क्वांटिटी व्हिच हैज हैपेंड। जो सिस्टम्स इन्होंने बिठाए हैं काफी रोबस्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एनईएमएल, जो उस लिहाज में भी उनको हेल्प कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ मदद कर रहा है। जो रितेश जी है शायद आज जो एनसीसीएफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको और गहराई में और डिटेल में बात करेंगे जब हम चर्चा आगे लेके जाएंगे एनसीसीएफ के बारे में। बट इनको ऑपरेशन स्केल करने में एनसीसीएफ का बड़ा हाथ रहा है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप दो सिस्टम, स्केलिंग अप द टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड जो चाहिए।
तो इसीलिए इन्होंने जो सिस्टम्स, प्रोसेसेस और वर्कफ्लोज काफी वेल डिफाइंड किया है एनसीसीएफ ने ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 year। और हम देखेंगे कि जैसे आगे चल के इनका जो काम काम है और कार्य है वो काफी बड़े हिस्सेदारी रहेगी इस सेगमेंट में आगे चल के। और आज जो हम देख रहे हैं कि एनईएमएल जिन्होंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, हम मतलब काफी लोग तो जानते होंगे एनईएमएल के बारे में, बट जस्ट कीप एवरीवन ऑन द सेम लूप एंड सेम पेज। एनईएमएल एक लार्ज पायनियरिंग मार्केट प्लेस है जो कि विश्व बड़े इंस्टीट्यूशंस और एंटिटीज से प्रमोट किया गया है, जैसे एलआईसी है, नाबार्ड, इफको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनकी हिस्सेदारी जो है लगभग 60% के ऊपर है और ये एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। तो और मैं 10 चीजें ज्यादा वक्त न लेते हुए एक 7 से 10 चीजें सामने रखना चाहूंगा एनईएमएल के बारे में, जो एज अ पार्टिसिपेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि हम बहुत हमारा पैसा लगा रहता है, हमारा बहुत कुछ जो ट्रेडिंग डिसीजन है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनईएमएल ने काफी, जो 20 साल हो चुके हैं एनईएमएल को एस्टैब्लिश होके, तो इन्होंने एक गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश कर चुके हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या इनोवेशन। और काफी सारे आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म ने इसी को नजर रखते हुए कॉपी किया गया है बहुत सारी चीजों में। सेकेंडली, जो एक सिस्टम 20 साल से बना है, इट हैज बीन टाइम टेस्टेड और रोबस्ट टाइम टेस्टेड सिस्टम और मैकेनिज्म्स होने के कारण बहुत सारे चीज रिफाइनमेंट हो चुका है और प्रिसिशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ द प्लेटफॉर्म जो है। ये अक्षर तो एक सेगमेंट है, बहुत सारी चीजें करता है एनईएमएल, बट अगर आप देखोगे इवन इसमें जो फाइन ट्यूनिंग है सिस्टम में, इट हैज अंडरगॉन द चेंज बिकॉज इतना समय हमने तय किया है साथ में। इट वाज द फर्स्ट टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस, इवन जो गवर्नमेंट एंटिटीज को जो ये स्टार्ट किया, अभी आप देखोगे नॉट ओनली एनसीसीआई, एफसीआई, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने बेसिकली ये एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड बना दिया है फॉर प्राइस डिस्कवरी। और ये जो ट्रांसपेरेंट अनबायस्ड प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है एक्चुअली गॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एनईएमएल टू ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, व्हिच हैज नाउ बिकम अ बेंचमार्क काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड। इनफैक्ट ईनैम जो इकोनॉमिक सर्वे में और गवर्नमेंट जब इसके बारे में इतनी बात करती है, एक्चुअली दैट हैपेंड थ्रू एनईएमएल्स GOI, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इनिशिएटिव इन द फॉर्म ऑफ REMS, राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि बहुत सारे इन्वेंशंस और इनोवेशंस में काफी हाथ रहा है एनईएमएल का। टेक्नोलॉजिकली काफी सुपीरियर है और स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स है। और इसका रीजन ये है कि जेनेसिस एक्सचेंज सिस्टम से आता है, तो इसीलिए हम टेक्नोलॉजिकली हमेशा इट्स ऑलवेज एट द सेंटर स्टेज, ये केंद्र बिंदु रह चुका है एनईएमएल के लिए, और हम हमेशा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करते रहते हैं जो भी सिस्टम्स है। सबसे मुद्दे की बात, और सबसे मैं गर्व से ये कह सकता हूं और बहुत ही विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आई कैन से, इज इट्स द मोस्ट सेफ, सिक्योर इन टर्म्स ऑफ योर ट्रांजैक्शंस एंड ट्रेड सेटलमेंट एंड फंड्स फ्लो विच इज हैपनिंग थ्रू द सिस्टम। तो आप ब्लाइंडली इस पे विश्वास रख सकते हो, लाइक एनी अदर बैंक, मतलब एनी PSU बैंक के जैसे, जो हम बात करें SBI में जहाँ पे हमारा पैसा सेफ हो रहने की गुंजाइश और रहता है, तो वैसे आप सेफली इस पे विश्वास कर सकते हो जब जहाँ पे आप पैसा रख के आपका ट्रेड कर सकते हो, एंड यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल रुपी इशू ऑफ रिकंसिलिएशन। इम्पेकेबल कस्टमर सपोर्ट आपको मिलेगा, सीजन डोमेन इंटेलेक्ट रिसोर्सेज है फील्ड पे, जिनकी वजह से आपको इंटेलेक्ट इमीडिएट रेजोल्यूशन भी मिलेगा, और जो जानकारी रखते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में, एग्री सेगमेंट के बारे में, जो ट्रेडिंग के लिए जो एप्स भी दिए हैं, यू हैव अ वर्ल्ड क्लास एप्स इन द फॉर्म ऑफ एंड्रॉयड एंड जो iOS के एप्स चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एनईएमएल एज अ प्लेटफॉर्म, इसका कोई इंटरेस्ट है नहीं, ना ट्रेडिंग में है, ना एसेइंग में है, ना वेयर हाउसिंग में है। ये तीनों चीजें हम करते नहीं है। इट इज अ न्यूट्रल अनबायस्ड काइंड ऑफ अ इंस्टीट्यूशन विच इज देयर एंड अ प्लेटफॉर्म विच डजंट हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई इसमें हित नहीं है एनईएमएल का। तो ये जो 8-10 चीजें कहा है मैंने, ये मेन एक स्वरूप है एनईएमएल का, और ये हम बरकरार रखेंगे। और आगे चल के हमारा इंटेंशन यही है कि हम चीजों को सॉल्व करें
उसको इनोवेट करें और उसको बिल्ड करें। जितना हो सकता है हम ट्रांसफॉर्म करें एग्री कमोडिटी सेगमेंट सेक्टर को, एंड ऑलवेज मेक अ मार्केट प्लेस विद अ डिफरेंस। तो इस थॉट्स के साथ और इस शब्दों के साथ मैं आगे श्रीकांत जी को बोलूंगा कि ये संवाद आगे जारी रखे। So these were a few of my thoughts, and let's all of together as a participant, as a industry, I come together and prosper along with NCCF. Yes, Over to you, Shrikanth. yeah, thank you, Praveen ji. Being a journalist, I can also add something to NEML because 25 years I have covered this market and 20 years I have been covering NEML also. So I can say it is a platform which is self-governed and self-regulated. That's why there is a lot of trust among FPOs also. This is my personal experience when I go into FPOs. They say NEML is our trusted platform for us. And maximum benefit of this platform is taken by government itself. So these are the two major highlights. Coming back to this our webinar, so let me congratulate more than 100 plus participants in today's webinar. We have already crossed 100 mark. So this is a very good achievement, and definitely it shows what kind of interest is there in the market. मैं ये कहना चाहूंगा लोगों को कि हम क्वेश्चन और आंसर सेशन भी ले रहे हैं। आप क्वेश्चन चैट में भेजते रहेंगे। आखिरी सेशन में हम लोग आपके प्रश्नों की उत्तर दे देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये आगे की जो चर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी और कुछ जगह इंग्लिश ऐसे ही करना मैं पैनलिस्ट को भी विनंती करूंगा, और मैं खुद भी हिंदी में बोलना चाहूंगा। तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि सोयाबीन, ये आगे चलने से पहले मैं थोड़ा एक मेरा व्यू एक दे रहा हूँ यहाँ की सोयाबीन में। मैंने पहले ही कहा कि पिछले 3 सालों में कई ज्यादा चेंजेस हो गए, पूरा मार्केट डायनामिक्स पूरे चेंज हो गए। तो क्या हुआ है कि एनर्जी ट्रांजिशन द मेजर डिसरप्टर ऑफ सोयाबीन वैल्यू चेन। जो एनर्जी ट्रांजिशन हो गया कि जैसे हम इथेनॉल की तरफ बढ़ने लगे, पूरे वर्ल्ड में नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल एनर्जी पे जैसे शिफ्ट होने लगा, तो क्रूड की कीमतें भी गिरने लगी। क्रूड और सोयाबीन का हमें मालूम है कि क्या डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ कि एक इंडिया के एंगल से देखेंगे तो मेज को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आ गया। और अगर सोयाबीन में मेजर डिसरप्शन किसी ने लाया है सोयाबीन वैल्यू चेन में, तो एनर्जी ट्रांजिशन, और उसमें भी इथेनॉल बनाने के लिए जो मेज का यूज हो रहा है, वो जो नया एक डायनामिक सामने आया है, इसके वजह से क्या हो गया है कि मेज ने काफी सोयाबीन को बड़ा डिसरप्शन कर दिया है। और आज सोयाबीन का मैक्सिमम कोरिलेशन मेज के साथ होने लगा है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेरे एक मित्र है जो दीपक चौहान, आप पहचानते ही होंगे, पुणे में रहते हैं और सोयाबीन के काफी अच्छे एनालिस्ट है, सोयाबीन और बहुत सारे कमोडिटीज के। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताया मुझे, मैं शेयर करना चाहूंगा, आप भी पसंद करोगे। सोयाबीन डीओसी एक 3-4 साल पहले अगर हम देखोगे तो सोयाबीन डीओसी है वो 4,000 में अगर बिक रहा था, उस वक्त मेज की कीमत 1,000 रुपया रहती थी या 1,200 रुपया, बराबर है। यानी मेज के लगभग 4 गुना सोया डीओसी रहता है। और आज की स्थिति में ऐसा है, मेज 22 रुपया 25 रुपया है और सोया डीओसी 27 रुपया 28 रुपये है। यानी ऑलमोस्ट 80% का जो ये गैप फिल हो गया। तो आज ये जो कन्वर्जन हो गया मेज का और सोया डीओसी, this is the key reason for soybean crisis that we are experiencing in last couple of years. तो ये एक जो ट्रांजिशन बड़ा आया, ये मैं कह दिया, ये हिस्टोरिकल क्या हुआ है अभी पिछले 2-3 सालों की हिसाब से। अब सोयाबीन की बैलेंस शीट कहे तो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछले साल 1 मिलियन टन था। ये साल क्रॉप समझो 12 मिलियन टन में, कोई ब्रॉड फिगर दे रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 1 मिलियन टन कैरी ओवर स्टॉक और 12 मिलियन टन का क्रॉप मिलके 13 मिलियन टन हमारे पास हो गया। उसमें से क्रशिंग लगभग 6 मिलियन टन हो गया है आज तक, और नाफेड और एनसीसीएफ ने जो प्रोक्योर किया है वो 2 मिलियन टन है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ओपन मार्केट में 5 मिलियन टन का ही स्टॉक है, और आगे 6 महीना जाने हैं। 6 महीने हमारे इस सीजन के कम से कम बाकी है।
डीओसी एक्सपोर्ट है। एक सोयाबीन का मैं चित्र आपके सामने रख रहा हूँ, सिचुएशन स्थिति क्या है रख रहा हूँ। डीओसी एक्सपोर्ट हमारे काफी बॉयंट है, और हम लोग ये साल खत्म होते हुए मल्टी ईयर हाई एक्सपोर्ट, 5 साल के हाई तक एक्सपोर्ट देख सकते हैं सोयाबीन डीओसी के। ठीक है, इसमें एक हुआ है कि हमारा जो नॉन जीएमओ का एक प्रीमियम मिलता था वो लॉस हुआ है। उसके बारे में हमारे जो पैनलिस्ट है वो आपको ज्यादा और इत्तला कर ही देंगे। तो ये सिचुएशन अभी की है। सोयाबीन मार्केट डेफिनेटली एक बढ़ने की कगार पर या बॉटम आउट हो गया ऐसे कहने के लिए काफी सारे पॉइंट्स है। अब सोयाबीन का फ्यूचर देखेंगे तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन तैयार हो गई है, क्योंकि खरीफ क्रॉप आगे जो आने वाला है, अगर ऐसे ही आज की जो सिचुएशन पिछले 2-3 सालों का जो एक्सपीरियंस है किसानों का वो देख के, अगर हो सकता है आगे चलकर 10-15% या उससे ज्यादा भी रिडक्शन हो सकता है एरिया में, तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है। ग्लोबली ऐसा है कि प्लांटिंग इंटेंशन जो अभी तक फॉर्मली नहीं हुए, बट प्लांटिंग इंटेंशन जो है अमेरिकन एरिया, जो अमेरिका और साउथ एरिया में, वो लोअर साइड पे है। ब्राजील का क्रॉप भी पीक हुआ है ऐसे बोलने के लिए काफी जगह है। अर्जेंटीना तो आप में मालूम है वल्नरेबल रहती है, और ला नीना जो आने का बहुत बड़ा चांस है, वो ला नीना कुड क्रिएट ड्राउट्स लाइक सिचुएशन इन साउथ अमेरिका एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये सब चीजों के बीच में आज के ये सेमिनार को काफी इंपॉर्टेंट है शायद सोयाबीन के मार्केट इंसाइट के लिए। तो ये मेरा एक व्यू मैंने सामने रखा, ये परिस्थिति रखी है। अब मैं एक करके आपके पैनलिस्ट में से इन अभी जो मैंने जो पॉइंट रेस किए उसके उससे डिटेल में बात करने के लिए और सोयाबीन मार्केट इंसाइट आने के लिए एक करके एक पैनलिस्ट को बुलाऊंगा। तो मैं पहले बुलाऊंगा अंकित बुतड़ा जी, जो डायरेक्टर है कीर्ति ग्रुप लातूर। आपको तो मालूम है कीर्ति ऑयल लातूर, आप मराठवाड़ा में तो कीर्ति ऑयल ही आपको शेल्फ में पहले ही मिलेगा। तो डायरेक्टर है कीर्ति ग्रुप के अंकित बुतड़ा जी। तो अंकित जी, आपको मैं पूछना चाहूंगा कि जो करंट मार्केट पोजीशन है सोयाबीन, तो सोयाबीन का इम्पोर्टेंस, और इसी वक्त ऐसी सिचुएशन है तभी हमारे गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योर किया उसके जो ऑप्शन चल रहे हैं अभी, एनसीसीएफ ऑप्शन चालू कर रहे हैं, तो उसके प्राइस डिस्कवरी और सोयाबीन का जो इम्पोर्टेंस है, तो मार्केट पोजीशन, आप इसके बारे में अपना क्या व्यू दे सकते हैं? नमस्कार सर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तो सर सबसे पहले मैं एनसीसीएफ और जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनको काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा सोया फ्रेटर्निटी और सोया कॉम्प्लेक्स की ओर से, जिन्होंने समर्थन मूल्य पर सोया खरीदी कर कर जो मार्केट को सपोर्ट दिया है वो काफ़ी ज़रूरी था वो टाइम पर। और अभी हम लोग जो है मौजूदा और भविष्य सोयाबीन की जो भाव की बात करें तो स्टॉक सिचुएशन एसेस करना बहुत ज़रूरी है करंटली अभी। तो अभी लगभग जो है देश में 120 से 130 लाख टन का जो प्रोडक्शन है, और अभी लगभग 8 से 9 लाख टन क्रशिंग पर मंथ होता है प्लांटों द्वारा। तो एज ऑफ मार्च एंड जो है हमारे पास जो इन्वेंट्री जो बचती है वो लगभग 60 से 70 लाख टन के आसपास बचती है। इनमें से जो है हम लोग रिटेन फॉर सोइंग के आसपास वो फिर से 10 से 15 लाख टन चले जाएगा। तो स्टॉक जो बचता है लगभग 19.5 लाख टन, तो इनमें से जो है एनसीसीएफ और बाकी गवर्नमेंट एजेंसियों के पास है। तो अभी मेजर स्टॉक होल्डर जो है ये सिचुएशन में मार्केट में, वो गवर्नमेंट एनसीसी और दूसरी एजेंसियां ही है जो मार्केट को कंट्रोल करेगी अभी। तो ये जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इनका डिस्पोजल जो फैक्टर जो इनका है, प्राइस मैकेनिज्म जो इनका डिस्पोजल का है, पूरा मार्केट अभी वही कंट्रोल करेगा। पूरे भारत की जो निगाहें हैं सोयाबीन को लेकर, इनकी जो डिस्पोजल जो प्राइसेस है एनसीसीएफ की और दूसरे गवर्नमेंट एजेंसियों की, उन पे ही अभी पूरी निगाहें हैं भारत की। और लगभग काफ़ी बड़ा स्टेक होल्डर है, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है। तो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर तो यही है। और एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आएगा वो आएगा है एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑन सोया मील, जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है करंटली। तो अगर ये गवर्नमेंट ने अगर मतलब लाते हैं, प्रपोज कर रहे हैं अभी तो फिलहाल, अगर आता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जो सरप्लस सोयाबीन जो होता है करंटली, सरप्लस सोयाबीन जो कैरी फॉरवर्ड जो स्टॉक आता है सोयाबीन नेक्स्ट ईयर में जो जाएगा, अगर उसका अगर निकासी सही तरीके से एक्सपोर्ट की ओर चली गई तो जो नया जो क्रॉप सीजन में जो रहा, काफ़ी आगे भविष्य की बात करते हैं तो प्राइसेस कुछ अच्छी तरीके से रहेंगे, मतलब जो एमएसपी के ऊपर भी रहेंगे, जिससे एनसीसीएफ और बाकी एजेंसियों पे दबाव भी ना पड़े
और एक फ्री मार्केट रेट चलेगा, जिसके कारण किसानों को भी अच्छा मूल्य मिलेगा, और जो है क्रशिंग जो है हमारी भी अच्छी चलेगी, और जो हमारा एंड कंज्यूमर है सोयाबीन मिल, जो पशु खाद्य या एनिमल फीड जो प्रोसेसर्स है, उन्हें भी जो सोयाबीन मिल जो है काफी अच्छे भाव में मिलेगा। और जो अभी फिलहाल थोड़ा बहुत अभी जो डिमांड तो काफी अच्छी है भाव में, जो है 27-28 हजार, जो अभी 29 के आसपास जा रहे हैं अभी डीओसी के। और 150 से 200 रुपया जो अभी तेज हुआ है सोयाबीन, वो एक शॉर्ट स्क्वीज के कारण हुआ है, जो अभी फिलहाल अप्रैल मई के आसपास भी और 100 के आसपास बढ़ सकता है। ऑल इन ऑल करंट सिनेरियो, फ्यूचर सिनेरियो देख के लग रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड ही मार्केट रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर स्टेप या फिर डिस्पोजल के प्राइसेस काफी अफेक्ट करेंगे मार्केट को। ऑल इन ऑल दो मेजर फैक्टर आज से देखा जाए जो सोयाबीन सीड के प्राइसेस को अफेक्ट करेंगे, वो एक रहेगा डिस्पोजल प्राइसेस बाय एनसीसीएफ और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, और दूसरा जो मेजर फैक्टर रहेगा एक्सपोर्ट पैरिटी, जो कि अभी फिलहाल है, लेकिन 100-200 बढ़ेगा तो हम बाहर हो सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंसेंटिव सपोर्ट करेगा। ओके, लेकिन आप अपने अंकित जी, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सोयाबीन पैरिटी के बारे में, डीओसी एक्सपोर्ट पैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं आप, लेकिन अगर ग्लोबली प्राइस देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा यहाँ से भाव बढ़ भी जाएगा तो हमारा जो नॉन जीएमओ है उसके वजह से उसे एक ज़्यादा पैरिटी के एंगल से मैं बोल रहा है, फिर भी थोड़ा हम लोग, हमारे पास अभी भी काफ़ी रूम है कि प्राइस एब्सॉर्ब करने के लिए थोड़ा रूम है हमारे पास, यानी एकदम पैरिटी एकदम से नहीं जाएगा। राइट, बराबर है। यस यस। अभी फिलहाल जो है सर हम लोग बाउंड्री पे साउथ ईस्ट एशिया मार्केट लेते हैं, साउथ ईस्ट एशिया का, तो करंटली थोड़ा बहुत पैरिटी में है, लेकिन यूरोप जो है वहाँ पर फिर भी अभी थोड़ा बहुत प्रीमियम चल रहा है नॉन जीएमओ का, $80 to $100 बोल सकते हैं, तो उसके हिसाब से तो फिलहाल है अभी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपको मैं विनंती करूंगा कि आप रहेंगे तो, और आगे चलकर हमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप तैयार रहिए। यस श्योर। तो मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं अगले पैनलिस्ट कमल वैद्य जी के पास जाऊंगा, जो आईटीसी के प्रोक्योरमेंट हेड है, पर्सनल केयर डिवीजन कलकत्ता के। तो आईटीसी आप हमें सब मालूम है, तो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उनका एक अलग टाइप का एक सिनेरियो, उनके पास काफी मार्केट इंटेलिजेंस अलग रहता है, ग्लोबली भी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनका एक बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। तो हमें एक बहुमूल्य इंफॉर्मेशन जो ग्लोबल मार्केट से लिंक काफी है, जो अभी बहुत कुछ चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, यानी डिस्ट्रप्शन ग्लोबल मार्केट में भी काफी हो रहा है, तो उसके एंगल से अगर हम देखेंगे तो हमें कमल वैद्य जो है आईटीसी के, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि एक डिमांड सप्लाई सिनेरियो एक ग्लोबली क्या बन रहा है, और इथेनॉल पॉलिसी का इम्पैक्ट, जो मैंने पहले भी कहा कि जो मेजर डिसरप्शन हुआ वो सोयाबीन मार्केट पर, आगे चलकर हम देख रहे हैं कि मेज और मेज टू इथेनॉल बढ़ेगा ही, उसमें कुछ स्लो डाउन आने की गुंजाइश नहीं है, जबकि हमारे पास शुगर केन भी नहीं है इतनी जल्दी, कम से कम अक्टूबर नवंबर तक। तो वो एक फैक्टर है। दूसरी तरफ पहले भी मैंने बताया कि इंडिया का जो जीएमओ प्रीमियम है, तो कई मार्केट में यूरोप वगैरह होगा, लेकिन जनरली जो हमारा प्रीमियम बनता था $100 का, वो कहीं तो हम लोग लूज कर रहे हैं। हमारा डीओसी एक्सपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जिसका रियलाइजेशन चाहिए वो नहीं हो रहा होगा। तीसरी तरफ ट्रम्प पॉलिसी जो एंशुइंग है, अभी भी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, ट्रम्प क्या करेंगे, वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग इन द वर्ल्ड इज नॉट इवन वेदर बट ट्रम्प। वेदर में भी कुछ तो हमें प्रेडिक्टेबिलिटी है, बट ट्रम्प क्या करेंगे ये हमने कल ही देखा ऑटो सेक्टर के बारे में। तो ऐसे सब सिचुएशन में आप आईटीसी की तरफ से हम जानना चाहेंगे, वैद साहब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये सब इकोनॉमी आप अगर एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा रहे। First, thanks for the email for inviting me, for speaking about this soybean market. And the question which Srikanth has given to me, I try to my best to deliver to you. One thing, global supply of the soybean in particular is abundantly, The production of the soybean in particular 2024 and 25 increased about 5.5%,
And in last 4 years, 17% increase in particular soybean production. The main region, the soybean production is Brazil. The Brazil crop, which was at 2021, is about 129 million ton. Today is about 170 million ton. Is 40 million ton more. Is almost 4 times of Indian total crop. Means 4 times of the Indian crop increase in last 4 years. So that is main reason of these supplies are evidently. Inventories are enough, globally. Inventory last 4 years, you can say, is about 30% increase in global soybean inventories. Even though last year versus this year, the inventories of the soybean increased about the 8%. So that is a total overall global scenario. Demand side, the meal demand is also good as is production. The particular Europe, you can say Europe, China, or USA, the meal demand is good. Main reason of the meal prices, prices is lower as compared to other sunflower or other oil seeds, oil meal prices. That is one of the reason. Second is the price which I mentioned, is the reason, This is the overall scenario of the supply chain of this globally, soybean, Particular about the ethanol, Ethanol, the prices, these policies are well intended, is good, definitely, is long term, is you can renewable energy. Second is the pollution is less, but that's also have own impact, negative impact. For example, is the food security, I will say, And second thing is the impact to the particular soybean industry, which is having the 50,000 crore industry, We have seen now recently the DDGS, price about 20-30% is lower as compared to soya meal. Therefore, domestic demand of the soya meal declined sharply in last few years, We have seen the poultry protein requirement is almost 2% increase in CAGR basis last 4 or 5 years. But the meal demand is domestically declined, in particular last 4 or 5 years sharply. And other side, DDGS demand, in particular rice bran DDGS demand is increasing about the more than 30%, So that is scenario. Therefore, farmers are not getting the right prices, The selling prices of the soybean in India is almost 5-year low, We can say it's 5-year low. Farmers are not getting the price. And in fact, I will tell you, in case of this government will not solve some issues, particular right price to the farmers, I think we'll have the impact of particular sowing in next year, for this soybean, That's my view, So government has to address the key issues like this Ankit has mentioned about the incentive, which immediately they have to announce some incentive particular to export of the soya meal, So the farmers can get the better realization. Second thing is some of the policies which are not really required now, like rice bran meal, the ban of the rice meal is not relevant now in these days, but still is there, Third thing is important, the NCDX ban of the NCDX, is soybean is not required, Now this is a platform, which way these traders, you can say, is farmers can hedge their product, That is my view, And third thing is import duty on the particular edible oil, Like today morning, this Shivraj Singh Chauhan again announced, the India can again consider the import of the import duty hike of the import duties, So these are the scenario, particular ethanol side, Second thing is important, is what you are saying is Trump policy, Definitely, Trump policy will have the impact. Particular soybean market also. The Chinese demand can go to the Brazil, and Brazil, which supposed to sell generally in Europe market, Europe market or Middle East market. India can enjoy that benefit. Indian demand can go. India, they can buy more soya meal from India, That is there. And otherwise, side in Trump, every day he's announcing new policies, new tariff or something, and postponing back, So that's impacting the entire global economic environment, You see the last March month, the
soya, even though it's impacting not only the global countries, but also it's also impacting the entire this USA also. USA, for example, inflation in USA is increasing, is bound to increase. The product farmers cost, actually input cost actually in the USA will increase further. That's our particular fertilizer cost will increase. And second thing is you see in last March month, the share prices in USA declined sharply. The USD index, which was the very high peak actually 110, now is again the October levels. That's also negative impact to the USA. So that is there. So that's all about the Trump policies. Yeah. तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने जो जितने प्रॉब्लम बताए, तो इससे ट्रम्प पॉलिसी या यूएस पॉलिसी में हम देख रहे हैं कि चाइना ने भी यूएस सोयाबीन की जगह ब्राजील या अर्जेंटीना की तरफ मुंह मोड़ दिया है। तो यूएस के लिए एक धोखा था इसमें कि उनका सोयाबीन ना हो। लेकिन मैंने एक देखा है कि सोयाबीन प्रोड्यूसर्स लॉबी जो अमेरिका में है वो काफी इन्फ्लुएंशियल है, और उसका ट्रम्प के वोट बैंक से काफी कनेक्शन है। तो ट्रम्प will definitely not go that strong on China, and they have the lobbies have told Trump to take a lenient view on China, on soybean at least. So to that extent, that's why soybean एक बॉटम बन गया है। ऐसे बोल रहे कि $10 एक बॉटम बन गया है, यहाँ से अभी गिरने का कोई चांस नहीं। That's right. वैसे ये मैं प्राइस आउटलुक के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, ये प्राइस आउटलुक के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बट कहीं तो सोयाबीन के लिए सिचुएशन चेंज हो रही है। जो 2 साल का जो स्ट्रेस था तो वो जाकर कहीं चेंज हो रही है, ऐसा एक मानने के लिए एक जगह है। और दूसरा, एक आपने गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बोला, डीओआरबी एक्सपोर्ट अभी खुलना जरूरी है, या एक्सपोर्ट इंसेंटिव पर्टिकुलरली डीओसी के ऊपर। लेकिन पीछे अगर जाएंगे हम, तो डीओसी के ऊपर एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिले तो क्या आप एक बता सकते हैं कि उसका कुछ पार्ट तो फार्मर के ऊपर ट्रांसलेट हो सकता है, होता है? हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देखकर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में बहुत लोगों की, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत लोगों के दिमाग में ही है कि अगर डीओसी एक्सपोर्ट का इंसेंटिव दे दो तो वो नीचे फिल्टर नहीं होता है फार्मर्स को, यानी सोयाबीन प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ेंगी। तो ये एक सिनेरियो है। तो इसके बारे में आप कुछ अगर बाद में बात करें तो भी चल सकता है। Definitely, for what you are saying, ki Trump policy on soybean, you're right, Trump's what is this? He's a businessman, so he's negotiating, means he's throwing his counter proposal of tariff so the countries can negotiate better, Is ultimately this negotiation is skill tool, he's adopting, That's my view, So we'll see, in next coming at least 1 month, we'll have the clarity about the Trump policies. Yes. Regarding the soybean, definitely in case of the government will incentivize, so give the incentive, then definitely the farmer will get, because now crop is over, But otherwise, तो businessman कुछ अपने पास रखता नहीं है actually, आप देखिए, वो अंकित जी बताएंगे आपको कि जो पैरिटी कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसी हिसाब से प्राइस बढ़ा देता है। अगर उसको इंसेंटिव मिलेगा तो वो इंसेंटिव अपनी जेब में नहीं रखता है, वो उसी हिसाब से सोयाबीन परचेज करने लग जाता है एक तरीके से। तो वो डेफिनेटली उसका कुछ हमारे हिसाब से तो जाना चाहिए, फार्मर्स को भी मिलेगा ये जरूर ये इनपुट पॉलिसी में तो तब जाएगा ही। तो मैं इसके बाद में अगले पैनलिस्ट नरेश गोयनका जी, जो डेप्यूटी चेयरमैन है सोपा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक वो हमें सबको मालूम है कि जो डीओसी एक्सपोर्ट है उसमें सोपा काफी बड़ा काम करता है। सोपा ऐसे भी काफी डेटा और इंफॉर्मेशन मंथली डिसेमिनेट करता है, मार्केट के लिए बहुत जरूरी होता है वो। तो नरेश गोयनका जी से मैं पूछूंगा कि एक डीओसी एक्सपोर्ट एक्चुअली सोपा के मेंबर्स है, या अगर डीओसी एक्सपोर्टर्स है, वो इस वक्त सोयाबीन में अगर देखेंगे तो यह कहा जा सकता है, ये मार्केट कह रहा है कि वो सबसे स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि सोयाबीन की प्राइसेस बहुत गिरी हुई है, डीओसी एक्सपोर्ट काफी अच्छा चल रहा है। तो अगर पूरे वैल्यू चेन में अगर कोई स्वीट स्पॉट में है तो सोया डीओसी एक्सपोर्टर और प्रोसेसर है, ऐसी एक कहा जाए। तो मैं गोयनका जी से पूछूंगा, सर ये आपको डीओसी मार्केट के बारे में और थोड़ा
आप डिटेल में एक्सप्लेन करके और उसका आगे चलकर सोयाबीन को कितना, सोयाबीन पर क्या असर हो सकता है, एक थोड़ा सा आपका व्यू दे सकते हैं तो। नमस्कार श्रीकांत जी, धन्यवाद आपको, वेबिनार आप ऑर्गेनाइज किए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद एनसीएसएफ और नाफेड को। उन्होंने 20-21 लाख टन जो प्रोक्योरमेंट किया है, किसानों की काफी बर्डन उन्होंने मतलब निकाल दी है, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके बारे में मेरा बोलना ये है सर कि अपने पास में करीब करीब 10 लाख टन लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। और अभी ये साल अपने पास हमारे जो सोपा के डाटा है उसके हिसाब से 125 लाख टन प्रोडक्शन है। किंतु अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के जो डाटा है वो 151 लाख टन के आए हैं। हम 6-7 रोज पहले सीएसीपीसी के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई, काफी दिनों से हमारी मुलाकात हुई अभी 4-5 दिन के नीचे। तो उनमें सीएसीपीसी के चेयरमैन जी का जो बोलना है कि मतलब ये प्रोडक्शन जो आप 125 लाख टन बता रहे हैं, ये 151-52 लाख टन के करीब करीब है। और इसमें मेजर डिफरेंस जो आया है वो महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र के अंदर जो यील्ड हमने जो बताई थी वो करीब करीब 1100 किलो बताई थी, और उनका जो यील्ड आ रहा है 1400 किलो के करीब आ रहा है। तो करीब करीब ये देखिए आप, मतलब 20 लाख टन का फर्क खाली महाराष्ट्र में आ रहा है। तो सोयाबीन का प्रोडक्शन में जहां तक मेरी पर्सनल राय, मैं सोपा की राय नहीं बता रहा हूँ इसमें, मेरी पर्सनल राय ये है कि जो सीएसीपी के जो डाटा है वो मोर रिलेवेंट है कंपेयर टू हमारे डाटा से। ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि हम जो एरिया में रहता हूँ, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो हमारे एरिया में जो यील्ड है वो करीब करीब 1700-1800 किलो सब जगह है। कुछ हल्की जमीन है उसमें 1200-1300 किलो है, किंतु एवरेज हम देखा जाए तो 1500-1600 किलो के करीब एवरेज यील्ड आती है। और जो सीएसीबी के चेयरमैन विजयपाल शर्मा थे, उन्होंने बताया कि हमारा जो अभी यील्ड निकालने का जो सिस्टम है वो काफी रिलेवेंट हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, तो अभी उतना हमारा डिफरेंस नहीं आ सकता ऐसा। ये सबसे बड़ा इश्यू तो ये है कि अभी करीब करीब हमारा 125 लाख टन है और उनका 151 लाख टन, तो 25-26 लाख टन का ये डिफरेंस आ रहा है अभी। तो इसको ऑल टुगेदर अपन एवरेज लेते हैं तो 10 लाख टन का लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड है, 135 लाख टन ये लेते हैं, तो करीब करीब 145 लाख टन हो गया। इम्पोर्ट कुछ होगा नहीं है साथ, ज्यादा कोई 50-60 हजार टन हुआ तो हुआ, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसमें से 15 लाख टन तो रीसोइंग के लिए चला जाएगा। तो 130 लाख टन अपना कैरी फॉरवर्ड मतलब टोटल स्टॉक सीड के लिए अवेलेबल है क्रशिंग के लिए। तो उसमें ऑलरेडी 6 महीने मोर और लेस बीत गए। 6 महीने के अंदर करीब करीब 66-67 लाख टन सीड क्रशिंग हो चुका है अंदाजा। थोड़ा सोपा 62-63 ही बता रहा है, किंतु मेरे हिसाब से 66-67 लाख, क्योंकि महाराष्ट्र में क्रशिंग रेट ज्यादा है काफी उसके हिसाब से। तो अभी अपने पास में यदि अपन 70 लाख टन और 2-3 लाख टन ये डोमेस्टिक कंज्यूमशन में चला गया, तो यदि अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो 70 लाख में से 135 में 70 निकाल दिए तो करीब करीब अपना 65 लाख टन बच गया। 65 में 20 लाख टन एनसीएस इसके पास गवर्नमेंट के पास है, तो 45 लाख टन ही स्टॉक अवेलेबल है क्रशिंग के लिए। और दूसरा बात, डीओसी का जो एक्सपोर्ट है, डीओसी का एक्सपोर्ट जो है, मतलब गए साल अपना मार्च तक जो था मतलब फरवरी तक के डाटा मेरे पास अवेलेबल है, उसमें 9.5 लाख टन गया था। तो उसमें गए साल ये 11.5 लाख टन था। किंतु इस साल प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बांग्लादेश की फाइनेंशियल क्राइसिस होने से वहां पे एलसी वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है, वाटर सिस्टम में भी कपड़ा उपड़े के भी अरेंजमेंट हो रहा नहीं है बराबर, तो वहाँ बांग्लादेश का अपना एक्सपोर्ट काफी ड्रेस्टिकली डाउन हो गया। और दूसरा इसका ईरान का भी एक्सपोर्ट बहुत डाउन हो गया। वो इराक का डाउन होने का कारण क्या है कि वहाँ की वेजल की अवेलेबिलिटी वगैरह पेमेंट की दोनों भी क्राइसिस वहां चल रही है। किंतु इसमें अपने को प्लस पॉइंट क्या हो गया कि अपने को ये साल यूरोप का काफी मार्केट अपने को मिल गया। यूरोप में जो गए साल अपना 2-2.5 लाख टन गया था, सॉरी 1.5 लाख टन गया था, ये साल मेरे को लगता है 7-8 लाख टन तक अपना यूरोप मार्केट में जाएगा ये साल। तो यूरोप का मार्केट काफी मतलब थोड़ा $60-70 अपने को प्रीमियम भी वहां मिलता है इसका नॉन जीएमओ का। तो इस हिसाब से एक्सपोर्ट जो गए साल 22-22.5 लाख टन था, वो मेरे को लगता है कि 20 लाख टन जाएगा। और यहाँ भी डोमेस्टिक के अंदर भी कंज्यूमशन है, डीडीजे राइस डीडीजेस का मेज डीडीएस का, दोनों का इनका भी काफी इफेक्ट है। राइस डीडीएस का प्राइसेस
भी से हमारे जो सोयाबीन डीओसी में और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा अभी। 22 रुपए किलो, 21 रुपए वो है, और 27-28 रुपए किलो डीओसी है। तो अभी क्या लग रहा है कि यदि गवर्नमेंट के, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी मिले हैं, 2-3 जगह और भी जाके हूँ, मैं पर्सनली भी जाके हूँ, तो वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर, डीओसी के ऊपर कुछ इंसेंटिव जो पहले था 10%, 7.5% वगैरह मिले, तो उसके लिए वो दूसरे वे से कैसे दे सकते हैं, उसके लिए भी हमारी कोशिश चालू है, किंतु अभी तक उस पर कोई कंक्लूड डिसीजन नहीं हुआ। गवर्नमेंट के दिमाग में ये है कि क्या है कि मतलब जो इंसेंटिव दिया जाता है वो फार्मर तक पास ऑन नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं है। हमने उनको समझाया है कि गवर्नमेंट जैसे ही डिक्लेयर करती है इंसेंटिव, वो इमिडिएटली वो फार्मर तक पास ऑन हो जाता है। इंडस्ट्री वाले को तो उसकी मार्जिन है आधा, तो 1%, 1.5% उतनी मार्जिन में ही वो काम करता है। सीड की रेट आज 4,500 है, कल के दिन 5,000 हो जाएगी, 5,500 हो जाएगी, वो उसकी मार्जिन ज्यादा कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता है। तो उनको समझाया तो उन्होंने बोल रहे कि ये WTO का इंटरनेशनल मैटर है, वो है, ये है, तो इंसेंटिव लगता नहीं है कि मेरे को इन फ्यूचर वो लोग कुछ करेंगे इसके लिए। कोशिश तो कर रहे हैं, किंतु मतलब अभी कोई कंक्लूड डिसीजन नहीं हुआ। मीनवाइल ये अभी ये जो ट्रम्प का जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी एक बड़ा मेजर टेरिफ है, मेजर इश्यू चल रहा है। उसके बारे में हमारे को बुलाए थे कि आपकी क्या राय है। हमने उनको बताया भी है कि यदि ये करेंगे तो मतलब यदि वहां से इसकी ड्यू टेरिफ यदि कम हो गई तो फिर अपन इंपोर्ट करेंगे, तो अपना तो यहाँ पे जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है वो और फिर डाउन हो जाएगा। किसान ऑलरेडी स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा। तो अब इसके लिए डीओसी एक्सपोर्ट के लिए अपने को सर बात यह है कि कुछ बांग्लादेश के साथ अपना कोई फाइनेंशियल टाई अप की थोड़ी बहुत बात चल रही है वाटर सिस्टम में। यदि वो कहीं एग्जीक्यूट हो जाती है तो बांग्लादेश का और ये महीनों में वहाँ पे कंजम्पशन भी ज्यादा रहता है, तो वहाँ यदि अपनी डीओसी चली गई तो अपने को यदि 25 लाख टन या 25 और 30 लाख टन के बीच में एक्सपोर्ट हो जाता है डीओसी, तो अपने काफी कंफर्टेबल पोजिशन में आ जाएंगे। और यहाँ भी थोड़ा बाजार, मेरे को जो मेरी पर्सनल राय है, सोफा की राय नहीं बता रहा हूँ, कि काफी मतलब अभी मेरे को जहां तक लगता है कि आने वाले दिनों में डीओसी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो राइस डीडीएस और मेज डीडीएस जो पर्टिकुलरली पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो यूज होता है, उसमें वो डाइजेस्टेबल नहीं है, तो उसे वो पोल्ट्री की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर डाइजेस्टेबल प्रोटीन चाहिए, और इनके अंदर डाइजेस्टेबल प्रोटीन भी नहीं है, और मेज के अंदर अफ्लाटॉक्सिन भी बहुत है। तो अफ्लाटॉक्सिन मतलब हेल्थ के लिए भी हैजर्ड्स है, प्लस पोल्ट्री के लिए भी हैजर्ड्स है। तो वो अफ्लाटॉक्सिन की वजह से वो लोग थोड़ा थोड़ा भी इसे दूरी कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए। उन्होंने करके देखा है, तो उसमें उनको सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलने से वो वापस थोड़ी दूरी बना रहे। यदि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हुआ तो थोड़ा बहुत लोकल कंजम्पशन भी अपना डीओसी का आने वाले वक्त में बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइसेस भी काफी लो आ गए। महेश की प्राइसेस भी 22-23 रुपए किलो है, डीओसी की प्राइस 27-28 रुपए किलो, जो एक जमाने में 1:4 के रेशियो में रहती थी। ये मेज 10-11 रुपए किलो रहती थी, तो डीओसी 45 रुपए किलो थी। तो अभी धीरे धीरे वो प्राइस के हिसाब से, मेरे हिसाब से कंज्यूमशन आने वाले वक्त में बढ़ेगा। अभी गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आज मैडम आई नहीं है मीटिंग में, मैडम से और नाफेड से ये रिक्वेस्ट है कि इसको, जो उनके पास माल है उसको अब तो जून जुलाई तक होल्ड करे, इसको सेल आउट करने की कोशिश नहीं करे, तो अपना बाजार काफी सुधर जाएगा। इससे किसानों को भी हेल्प मिलेगी और आने वाली क्रॉप भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर ब्राजील का क्रॉप जो है करीब करीब 4 टाइम्स बढ़ गया है, उसकी वजह से ही ज्यादा सब स्ट्रेस आ रहा है। और अपना इंडिया का रात तो कोई ज्यादा कोई बढ़ा नहीं, बढ़ा तो भी कंजम्पशन थोड़ा प्लस माइनस है, उसका बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा स्ट्रेस ब्राजील से ही है अपने को। और वो उनकी क्रॉप इतनी बढ़ गई कि मतलब उनको मतलब सेल आउट करने के लिए अभी तो थोड़ा चाइना वगैरह के साथ में उनका टाई अप ये ट्रम्प की वजह से हो गया है। तो हो सकता है कि वो यदि कंटिन्यू रहा तो आगे थोड़ा बहुत बाजार वहां भी थोड़ा सुधरने की गुंजाइश है। और अगले साल थोड़ा वहां पे बारिश वगैरह का भी जो ये है, थोड़ा एल नीनो के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा बारिश का भी अनुमान 7-8% कम बता रहे। यदि वैसा कुछ होता है, ला नीना हाँ, ला होगा। लेना के वैसा यदि कुछ होता है तो थोड़ा बहुत बाजार उसकी वजह से भी सेंटीमेंट में थोड़ा बहुत बुस्ट हो सकता है। और सर डीओसी का एक्सपोर्ट जहां तक गए साल अपना 22-22.5 लाख टन गया था,
यदि बांग्लादेश का कुछ स्थिति सुधरती है तो ये अपना एक्सपोर्ट 25-26 लाख टन तक इस साल जा सकता है, क्योंकि यूरोप के मार्केट में ये साल अपनी काफी पकड़ आ गई। ओके, वो तो अपने लिए गुड मतलब बिल्कुल। अच्छा सेगमेंट तैयार हो गए। तो अगर की टेक अवे आपने जो बात की उससे एक समझ में आ रहा है कि सोया डीओसी का जो एक्सपोर्ट है वो 25 से 30, अगर इफ ऑल गोज वेल जैसे हमने कहा है, और बांग्लादेश का भी हो जाएगा, और सोयाबीन के जो आपने बोला कि सोया मिल की डिमांड आगे बढ़ने वाली है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट नंबर जो है ये साल, अगर हम सोयाबीन ईयर, सोया मिल ईयर खत्म करेंगे नवंबर से अक्टूबर तक, तक लगभग 30 लाख टन के आसपास, यानी कभी तो 26 से 30 लाख टन के बीच में जा सकती है। बराबर है, हाँ ये जी। आपने कहा, ये टेक अवे है। दूसरी बहुत आप इम्पोर्टेंट और भी एक आपने बात कही है कि ये इंसेंटिव, और बांग्लादेश का जो आपने बताया वो हो रहा है, आपका जो बात चल रही है, बराबर है। तो उसके बारे में गवर्नमेंट का कुछ आपको कुछ इंडिकेशन है कब तक और कैसे? एक गवर्नमेंट का या मतलब गवर्नमेंट का तो उसके बारे में ज्यादा कोई मेरे पास फीडबैक नहीं है, किंतु बांग्लादेश में जो ट्रेडर हैं हम्म। वो ट्रेडरों से, मतलब हम भी थोड़ा बहुत डीओसी एक्सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं, ट्रेडरों के थ्रू। तो हम्म। उनका बोलना क्या है कि वहां पे अभी जो चाइना वगैरह जो कपड़ा जा रहा था हम्म। वो थोड़ा अभी मतलब उसका मार्केट स्लो है। यदि थोड़ा बूस्ट होता है तो वहाँ मतलब इसकी फाइनेंस की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अभी वो लोग भी काफी डीओसी के का रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा है और स्टेज में चल रहा है। तो वो भी मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे इसको मतलब डीओसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए। और वहां लेकिन और पे एक और एक मैं पूछना चाहूंगा, अगर चाइना को सोयाबीन, अगर यूएस के साथ उन्होंने क्रॉसिंग है उनका, वो नहीं लेना चाहते यूएस के ऊपर भी दबाव बढ़ाने के लिए, तो क्या है हमारे लिए चाइना की विंडो खुल सकती है डीओसी की? नहीं, चाइना की सर विंडो नहीं खुलेगी, मतलब जो मेरी पर्सनल व्यू है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्रू म्यांमार या कोई? हाँ, थोड़ा इनडायरेक्टली जा सकता है कि चाइना को एक्चुअली क्या है कि चाइना के मतलब पिछले 500 साल का जो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो लोग आते हैं बहुत बार, एग्जामिन भी करते हैं, क्वालिटी वगैरह का भी प्रोसेस करते हैं, किंतु उनके दिमाग में क्या है कि वो अपने इंडिया से डीओसी लेना ही नहीं चाहते। ओके, ठीक है। तो ये आपने एक भी और भी एक आप बताया कि यूरोप के लिए हमें अच्छा ये मिल जाता है, एक नॉन जीएमओ का जो प्रीमियम है वो मिल अब जाता है। प्रीमियम तो उतना ज्यादा नहीं था सर, अभी 40-50 डॉलर ही है, किंतु मतलब वहां का एक नया मार्केट अपने लिए तैयार हो गया। बिल्कुल, लास्ट बट ईयर जो 2-2.5 लाख टन अपना गया था यूरोप टोटल, वो मेरे को लगता है कि ये साल 8 से 9 लाख या 10 लाख टन तक भी जा सकता है। यूरोप से? हाँ, यूरोप में। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी मतलब मेरे पास मार्केट है। कंट्री वाइज भी डाटा है सब, यदि होना तो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, तो मेजर ये है कि यूरोप बड़ा मार्केट अगर इमर्ज हो रहा है तो हमें यूरोप की तरफ अलग, उसमें एक दूसरी एक संभावना है कि ईयूडीआर जो है, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, यूरोप का जो ईयू का जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन आने वाला है, जो दिसंबर से चालू होगा, इस साल में तो नहीं होगा, लेकिन उनका उस रेगुलेशन के हिसाब से ये है कि हमारा डीओसी जो यूरोप लेगा वो हमें सर्टिफाइड होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेड लैंड में उगाया हुआ सोयाबीन से वो नहीं बना है। तो इसके बारे में हमारे पास आपके सोया के भी एक मेंबर ही है, मिस्टर पीके व्यास है, जो अभी एग्रो और सूरज इम्पैक्ट के डायरेक्टर भी है, इंदौर के ही, सोपा के मेंबर भी है और डीओसी एक्सपोर्टर है। तो मैं पीके व्यास जी से गुजारिश करूंगा, सर ये ईयूडीआर जो है, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, और उसके इन द वेक ऑफ दैट रेगुलेशन आप कैसा देख रहे हैं डीओसी मार्केट को, और हमें क्या सावधानता लेनी होगी? व्यास साहब। मिस्टर व्यास, आप एक आप हाँ, ठीक है, अनम्यूट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस, यस, यस। यूरोप एक क्वालिटी मार्केट है और क्वालिटी की कॉन्शियसनेस वहाँ पर काफ़ी है। पिछले सालों में आप सभी ने देखा होगा
कि यूरोप को जितना भी माल इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है, खासकर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते थे, उसमें उनका कंसर्न रहता था कि उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं हो या पेस्टिसाइड्स के ट्रेसेस नहीं हो। उनका ये भी रहता था कि पीनट की प्रेजेंस नहीं हो, क्योंकि अपने यहाँ जो सोयाबीन ग्रो होता है तो उसके साथ में जो ना दूसरी क्रॉप भी आती है, तो कभी पीनट की प्रेजेंस आती है, कभी मस्टर्ड की प्रेजेंस आती है। तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, और कई बार जो उन्होंने इंडियन गुड्स को रिजेक्ट भी किया है। और इसी वजह से वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट व्हाइल सप्लाइंग टू यूरोप। अभी 2023 में इन्होंने एक रेगुलेशन निकाला था, यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन, जो कि लागू होने वाला था 31 दिसंबर 2024 से। अभी उसकी पीरियड बढ़ा के 1 साल और आगे कर दिया, तो 30 दिसंबर 2025 से लागू होगा। और इसमें जो ट्रेसेबिलिटी है, जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी ट्रेसेबिलिटी अप टू द फार्म। अब अपने इंडिया में टोटल 12 मिलियन हेक्टेयर जो है ये सोइंग होती है, और 5 मिलियन से ज़्यादा जो है ना इसमें किसान लगे हुए हैं। फार्म साइज बड़ी छोटी है। ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि सोयाबीन की ट्रेसेबिलिटी हम फार्म तक जो है ना उसको कर पाए। हालांकि यूरोप की जो गाइडलाइंस निकली है और जो उन्होंने इसके बारे में कंप्लायंस चेकलिस्ट दी है, तो उनका तो ये कहना है कि जो सोयाबीन प्रोड्यूस हो रहा है, जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, जिस जमीन पर प्रोड्यूस हुआ है, उस जमीन से रिलेटेड जो डाटा है दे शुड बी अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल, एंड अदरवाइज इट शुड बी सर्टिफाइड। इसके अलावा भी यदि ट्रेसेबिलिटी नहीं है तो परहैप्स दे मे नॉट एग्री टू बाय इट। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि यदि डिफोरेस्टेड लैंड है, यदि उस पर सोयाबीन ग्रो हुआ और ये एस्टेब्लिश होता है किसी भी तरह का, तो उस पर 4 टाइम्स पेनल्टी है। द पेनल्टी इन यूरोप इज वेरी हाई, एंड दैट्स व्हाई द यूरोपियन बायर्स विल बी वेरी कॉशियस। इसमें कई मतलब जो है ना, सोपा ने भी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और हमने भी फीओ को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये जो कंडीशन है, इंडिया में सोयाबीन ऐसी किसी लैंड पर उगाया नहीं जाता जो जंगल को काट के और उसको प्रोक्योर किया गया हो और उसके बाद में उसके ऊपर सोयाबीन उगाया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस फार्म्स के और फार्मर्स के द्वारा सोयाबीन की ट्रेसेबिलिटी को, कि सोयाबीन कहाँ से आया है। सोयाबीन एक्चुअली मंडियों में इकट्ठा होता है, उसके बाद में ट्रेडर्स के द्वारा प्रोसेसर्स उसको प्रोक्योर करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो कौन से फार्म से आया और उसको ट्रेस किया जाए, और उसके बाद वो जहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस करते वक्त भी अपने को ये नहीं मालूम है कि ये कौन से फार्म का प्रोड्यूस है, क्योंकि 10-20 जगह से इकट्ठा करके और हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। एक प्लांट की साइज 500 टन से 2000 टन तक की हो सकती है पर डे कैपेसिटी, और जो सोयाबीन प्रोसेस प्रोक्योर किया जाता है प्लांट के द्वारा, वो कई मंडियों से प्रोक्योर होता है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके ऊपर जो है ना कॉल लेना चाहिए कि इस कंडीशन को वेव करने के लिए वो यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट के साथ में कोई ऐसा साझा वार्तालाप करे, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है वही सर्टिफाई कर दे कि ये डिफोरेस्टेड लैंड पर उगाया हुआ सोयाबीन नहीं है। ओके, तो ये एक मूव की जरूरत है। और वैसे भी यदि यूरोप को या किसी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्वालिटी के बारे में पर्टिकुलर रहने की बहुत जरूरत है। राइट राइट। तो ये सब हम ऐसे जो क्वालिटी का जो कॉन्शियसनेस है वो हम मसालों में भी देख रहे हैं, कई सारी चीज़ों में देख रहे हैं, और यूरोप का मार्केट बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है। तो आपने जो उसके लिए जो तैयारियां चाहिए, तो उसके लिए जो अलग इकोसिस्टम बनानी होगी हमें, या इकोसिस्टम में चेंज करने होंगे, वो पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे, हम भी पहुंचाएंगे जरूर। तो आपने काफ़ी अच्छी इंसाइट दी इसके बारे में, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब मैं, हमारे पास जैसे कि वक्त की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा लेट भी चालू हुआ है, तो मैं अगले स्पीकर मिस्टर चितलांगे ब्रिजमोहन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स,
उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपको मुझे एक बात करनी है कि एक हम काफी सारे प्रॉब्लम जियोपॉलिटिकल भी देख लिए, लेकिन एक क्लाइमेट चेंज है और जियोपॉलिटिकल डायनामिक जो कुछ चेंज हुए हैं, जो उस उस हिसाब से अगर आप देखेंगे सोयाबीन मार्केट या सोया डीओसी मार्केट, तो आप क्या कहना चाहेंगे चितलांगे जी? नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन चितलांगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से बोल रहा हूं। सोयाबीन कल्टीवेशन जो नॉर्मली है वो रेनफेड से ही होता है। ये बारिश के पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है और पिछले 3-4 साल से ये सिचुएशन आई है कि पानी का प्रिडिक्टेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज मीन टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है उसके वजह से सोयाबीन की जो क्रॉप है किसी पर्टिकुलर एरिया में अच्छी होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में अच्छी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और पहले जो JS335 वेराइटीज अच्छी कहना मतलब ईल्ड देती थी वो भी नहीं दे रही है अभी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने सामने, जिसके वजह से ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है। और वैसे भी जो सिचुएशन है, किसान बहुत स्ट्रेस में है और क्लाइमेट चेंज भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो पर्टिकुलर वेराइटी के ऊपर कैसे काम किया जाए और अपना जो रेन का जो पीरियड है वो भी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। पहले जैसे जून 15 के आसपास हम लोग सोइंग करते थे और उसके बाद में क्रॉप अपनी सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आती थी, वो भी पीरियड एक्सटेंड हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए कौन सी वेराइटी सुटेबल रहेंगी ये अपने को एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं उनके से होना चाहिए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के वजह से क्या हो रहा है कि जो पॉलिसीज है वो अपने को फेवरेबल नहीं है। जैसे भी DOC के लिए मेरे को कहाँ बेचना है, जो DOC में प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके लिए भी मेरे पास मार्केट नहीं है बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन, तो वो भी बहुत बड़ा तकलीफ है। अब जैसे ट्रम्प का इशू है जो ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है, तो इस इशू के वजह से भी जो जैसे अभी DOC पे भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव यदि हमको मिलता है तो हम DOC एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरी पॉलिसी है। और जो FPOs है वो यदि कहने का मतलब फार्म लेवल से एग्रीगेट करके यदि हमको दे पाए, जो कहने मतलब काफी ज्यादा मात्रा के अंदर है, तो हमको सोयाबीन क्वालिटी वाइज अच्छा मिलेगा। और एक इश्यूज है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट के अंदर जो क्वालिटी है DOC की वो बहुत बड़ी कहने मतलब प्यूरिटी होना चाहिए, उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन का इश्यू नहीं होना चाहिए, बाकी जो दूसरे एंजाइम्स है वो नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से हमारी जो इमेज है वो एक्सपोर्ट मार्केट में होना चाहिए। ये मेरा व्यू है इसमें। ओके। तो थैंक यू। आपने जो सूचनाएं की है वो सूचनाएं तो वैसे ट्रेड की है ही, ये पहले से ही है। और हमें मालूम है कि क्वालिटी के बारे में, और हम आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं। इस कंपटीशन के प्रेशर की वजह से कई बार हम कुछ कुछ अनदेखी कर देते हैं, जिसका बड़ा प्राइस इंडस्ट्री को चुकाना पड़ता है, ये भी हमने देखा है। लेकिन आपने जो बात कही वो निश्चित रूप से हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू मिस्टर चितलांगे। अब मैं आखिरी पैनलिस्ट आज के जो है NCCF वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टर रितेश गड़ासिया, मैं आपसे विनंती करता हूं कि आप NCCF के ऑप्शन के बारे में एक मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से कि NCCF की ऑप्शन है वो काफी ऑर्गेनाइज मैनर में होगी। जैसे कि ओपन मार्केट में सोयाबीन अगर बिक्री होता NCCF के बजाय, तो वो उसका प्राइस इतनी अच्छी डिस्कवरी नहीं होती थी, अच्छी प्राइस नहीं रहती थी और काफी डिस्टॉर्टेड भी रहती थी। लेकिन अगर NCCF के ऑप्शन के थ्रू ऑर्गेनाइज मैनर में होगी तो प्राइस डिस्कवरी की क्वालिटी निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। अब कई पैनलिस्ट ने भी बताया है, आपको ये भी कहा कि आप गो स्लो ऑन ऑप्शन, मे बी स्पीड में भी स्लोअर, बट दूसरी तरफ ये भी प्रेशर है कि गोडाउन में हमें आगे प्रोक्योर करना है, चना भी करना है, तुअर भी करना है, मूंग भी उड़द। तो ऐसी सिचुएशन अलग बनी। आप NCCF की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर गड़ाचिया? जी नमस्कार। मैं एनसीसीएफ की तरफ से यही बोलूंगा। वैसे एनसीसीएफ के बारे में अभी जो प्रवीण सर ने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है कि हम क्या करते हैं। और हमने अभी इस साल अप्रोक्स 5,26,000 MT के आसपास सोयाबीन खरीदा है। इसमें MP, महाराष्ट्र एंड गुजरात तीनों स्टेट इंक्लूडेड है।
और उसमें से हमने एमपी में ऑलरेडी अपना ऑप्शन स्टार्ट कर दिया है। हमने महाराष्ट्र में लगभग 2,85,000 एमटी सोयाबीन खरीदा हुआ है। तो मैं सभी बिडर से ये बोलूंगा कि आप एक बार जाकर के थोड़ा सा गोडाउन से विजिट करके क्वालिटी वगैरह अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर किसी गोडाउन में किसी को इश्यू लग रहा है क्वालिटी से रिलेटेड, तो हमने ऑलरेडी अपने ब्रांच की डिटेल दे रखी है। मिसेज दीप्ति पाटिल जी हैं और ये पुंडलिक गुवाहाटी जी हैं, ये दोनों के दोनों कंसर्न पर्सन है। अगर कहीं भी किसी भी गोदाम में कुछ स्टॉक से रिलेटेड इश्यू लगता है तो इनको जरूर इन्फॉर्म करें। और मैं सभी बिडर से बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। और मैं सोचता हूँ कि अच्छा प्राइस डिस्कवरी मिलेगा और हम एनईएमएल के थ्रू ये करने वाले हैं। ऑप्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट यही है कि एक बार स्टॉक वेरिफिकेशन करके और अच्छा प्राइस के हिसाब से बिडिंग करने की भी कोशिश करें। आप कुछ रितेश जी, आप कुछ थोड़ा सा ये सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या ऐसे कुछ ऑप्शन का शेड्यूल दे सकते हैं आप, क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज, कुछ तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। रितेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो रितेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। अभी महाराष्ट्र में हमारे पास में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां हमने प्रोक्योरमेंट किया था। हाँ, हेलो। हेलो। जिसमें नांदेड़, हिंगोली, अहिल्यानगर, चंद्रपुर, सोलापुर, संभाजीनगर और नासिक है, जिनके 13 जगह है जहाँ पे कि हमारे वेयर हाउस है। टोटल 13 प्लेसेस, जिसमें नांदेड़, हिंगोली, अहिल्यानगर, सोलापुर, नासिक, चंद्रपुर, लातूर, संभाजीनगर, परभानी, जलगांव, वर्धा, वाशिम और जालना। ओके, ये सारे हमारे वेयर हाउसेज है जहां से कि आप मटेरियल लिफ्ट होगा आफ्टर ई ऑक्शनिंग। ओके, ओके। तो ऑलरेडी एमपी में हमारा चल ही रहा है और कहते हैं ये महाराष्ट्र में हम जल्दी शुरू करने वाले हैं सर। और अगर चाहें तो जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी बिडर्स हैं, वो वेयर हाउसेज में जाके क्वालिटी भी असेस करके आ सकते हैं कि क्या क्वालिटी है, कैसा क्वालिटी है। तो क्वालिटी हमने अच्छा ही प्रोक्योर किया है। वी हैव ट्राइड टू मैनेज द एफएक्यूज जितने भी थे सारे। और आगे सर जितना हो सके बढ़ चढ़ के आप इसमें पार्टिसिपेट करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। टोटल प्रोक्योरमेंट कितना है ये मेथड। ओके, कोई आपके ऊपर कोई डेडलाइन है कि जिसके पहले आपको ये प्रोक्योरमेंट खत्म करने के लिए कोई सर हमारे पास वैसे तो कोई डेडलाइन नहीं है। हमारे पास ये होता है कि विद इन 9 मंथ्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट हमको डिस्पोज करना होता है। ओके, तो ये डोका की गाइडलाइंस है, वो उन गाइडलाइंस के हिसाब से हमें करना होता है। प्रोक्योरमेंट बेसिकली हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू करते हैं और जो डिस्पोजल करते हैं वो डोका के थ्रू करते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि एनसीसीएफ बेसिकली हम 3 मिनिस्ट्री से कनेक्टेड रहते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, एज वेल एज डोका से, और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ओके, ओके, ये 3 रहते हैं। और हमारा जो टोटल प्रोक्योरमेंट है यहाँ पे है 2,33,000 का है महाराष्ट्र में। ओके। इसके बाद मैं सेंटर वाइज अगर आपको लगेगा तो मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगा। यहीं पे शेयर कर देते हैं, एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ आपको। एक जस्ट टेबल, एक छोटी सी आइडिया हाँ, आने के लिए, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं, ये क्योंकि हमारे पास समय की भी मर्यादा है। एक मिनट सर, हाँ, शेयर दिख रहा है सर? हाँ, नहीं, हाँ, देख पा रहे हैं सर? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। इसके लिए आप हमारे नीचे नंबर्स भी दिए हुए हैं। वैसे पुंडलिक भी है और दीप्ति मैडम है जो ब्रांच मैनेजर हैं मुंबई में। तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है। ई ऑक्शनिंग से रिलेटेड एनईएमएल की टीम के डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एमपी का है और नंबर ऑफ वेयर हाउसेस एमपी में 205 है हमारे। ठीक है सर। और अगर आप इसमें जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, तो महाराष्ट्र में नंबर ऑफ वेयर हाउसेस 54 है टोटल। ठीक है सर। आप जगह आपको सारी दिख ही रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सारे दिख ही रहे हैं, कहाँ कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो दिख ही रही है। 2,83,000 एमटी का
हमारा महाराष्ट्र का पूरा है। और हाँ, नांदेड़ में है, 8 वेयर हाउसेस है नांदेड़ में हमारे। नांदेड़ में सबसे ज्यादा है। हाँ, नांदेड़ में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट सर वहीं हुआ है हमारा सबसे ज्यादा। ओके, ये बेसिक है, और नंबर्स यहाँ पे दिए हुए, बाकी हम आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, आप ये जो चाहे तो- आइडिया आया हमें यही चाहिए था, ज्यादा नहीं, एक बॉलपार्क जी, फिगर चाहिए थी। हाँ, और सर बाकी और अदर ऑयल सीड और पल्सेस में भी हम लोग कर ही रहे हैं प्रोक्योरमेंट। ओके आप जैसे जैसे क्योंकि एनसीसीएफ हमने 1 साल पहले ही ये सब शुरू किया है पीएसएस में प्रोक्योरमेंट। ओके बट वी आर डूइंग गुड, वी आर पैरेलल टू नैफेड के साथ। नैफेड पुराना ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद इतने लंबे समय से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और हमने इसी सेशन में किया है, तो हमने वी हैव परफॉर्म सो गुड। और बाकी इसका सोयाबीन का सर एक और बता देता हूँ मैं, ट्यूसडे और थर्सडे को ऑप्शंस होंगे। ओके, ट्यूसडे और थर्सडे ऑप्शन हो जाएगा। ट्यूसडे थर्सडे 11 AM to 11:30 AM। यस। और मिनिमम बिड क्वांटिटी जो रहेगी वो 500 MT रहेगी सर। हाँ, और क्वांटिटी टिकट साइज रहेगा 10 MT। ओके और मैक्सिमम बिड क्वांटिटी रहेगी 2000 मेट्रिक टन। ओके, ठीक है ना? ठीक है। तो काफी बड़ी इंफॉर्मेशन आपने दी। जी सर। या गड़से साहब, थैंक यू। रितेश जी, जी थैंक सर, यू। थैंक यू। तो मैं आप हमारे जो पार्टिसिपेंट है और जो इंटरेस्टेड है इस ऑप्शन में, उन्होंने तो सब ये आपने जो डेटा दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली दे कैन प्रिपेयर। सो थैंक यू। So now I am coming back to, so from all our panelists have given very good information and very good insight on the market, international scenario, and how future lies for soybean and all. So key takeaway from this is that all the bad things in soybean are definitely behind us, and we are moving ahead with definitely much more confidence. Definitely, I also wish NCCF happy auctions, and hope your auctions get very good. Of course, it will be successful and it will be very good, because you are doing it through NEML, so it's a platform that also plays important role. So all good is lying ahead of us. On that note, I would like to end this session, but before that, we would like to take certain questions. Lot of questions have been asked. We will just take certain important questions only and read out. So I will read out, and our panelists, whoever wants, you can just start answering the question. The first question that was, explain the comparison of soybean and soybean oil in 2021, soya per kg 40 kg, and same time oil prices 110 per kg. Last year, okay, so soybean was 40 and oil was 110, and last year soybean rate per kg 70 rupees, oil goes 140 rupees. Right now soybean is again at 45 to 50, but oil is 140 per kg. So can somebody explain this comparison? Obviously, this comparison explain. I don't think more time should be wasted, because simply because this time oil dynamics have changed, edible oil, and palm oil prices have gone through the roof, and it is at premium. So obviously, we can't bring palm oil, and government has imposed duty on edible oil. That time there was a zero duty. Today there is a lot of duty, some 30-35% duty. So these are the major reasons behind this kind of widening of difference. And secondly, it is not just that edible oil is priced, but soybean is also depressed because of supply overhang, lot of supply globally also and in India. So there are many factors. For edible oil, another factor, rupee has gone down now. So that is also a problem. So this difference, there are 2-3 various reasons. Second question is, farmers' realization of soya crop is at the lowest, profitability continuously decreasing. Shall farmers shift to other crops? Of course, which crop? That is a big question, because except maize, I don't think farmers have really got very good price for anything else. So obviously they are going into even shorter shift. Crop shift can happen only to fruits and vegetables. It is up to every, it is a
up to everybody, because particular farmers or particular region, not everywhere it is. There is not a secular answer to it. So, but definitely shift is likely. But if soybean, everybody said that soybean prices might go above MSP also before Kharif sowing start. If that happens, and there are all indications it will happen, again farmers will forget of shifting. Third question, as you mentioned that China does not want to take the soya DOC, but they are taking mustard DOC now. Is there any reason? I can tell you that what China did for taking mustard DOC now, they negotiated and they played big politics with us for 6 good years, various committees, various delegations, and finally nothing worked out. It happened. So ultimately, when they want, they will take. There is no, we cannot say. This is the question I will put forward to some panelists. What will be the price outlook in the near future? Will it reach 4,700? Can somebody in the panelists tell? Mr. Chitlange, would you like to tell price outlook in the? See, it is possible if we get the incentive, export incentive on DOC, then it may be possible to reach 4,700. And also the quality of the soybean meal, which we sell in the domestic and the international market should be the pure, and there should not be any adulteration. Okay. Okay, so 4,700 with a condition that you get soya DOC. But many people said it will be without DOC benefit also. It can reach 4,700 or even more than that. Okay, so I think our questions are also, there are some more questions, but those important questions I have taken. 1 second, let me check. DOC adulteration in local sale affects our poultry to grow. Will WTO impose anti-dumping duty if incentive is given? Mr. Vyas, can you answer? Will WTO impose anti-dumping if incentive is given on DSC? Anybody? You can unmute and answer. नहीं, WTO के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यह है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो टर्म्स हैं, जैसे इसके पहले एक MEIS करके इंसेंटिव था जो 10% तक किया हुआ था, और चूंकि अपना एग्रीमेंट WTO की टर्म्स के खिलाफ था, तो गवर्नमेंट ने बात को उसको रेस्ट्रिक्ट करके और फिर 5% किया, 7.5% किया, और इसे इट वाज रिमूव्ड देयर आफ्टर. फिर ये रोड टेप लेके आए अभी. Okay, okay. So thank you. So we are ending this session, but before ending, I will hand over to Mr. Praveen Hiremat or to NEML for a vote of thanks. There was 100 plus throughout the session. There was 100 plus presence. So Mr. Srikant Chidrewar, I would request you to give vote of thanks before ending this session. And thank you all for joining this and giving your important view. All the panelists, I thank them. I thank NEML as well for giving me this opportunity to bring these people all together and conduct this very good discussion at a very important time of in the market. So Mr. Srikant Chidrewar, over to you. Thank you. Thank you, sir. So as we conclude our today's session, so I will with deepest gratitude, I congratulate everyone, to all the participants for making it a great success. To the NCCF also, I will congratulate them also, for their strategic approach towards disposal,
तो वो भी बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पे स्टॉक है और कैसे कैसे वो बेचना चाहते हैं। जो भी पैनलिस्ट ज्वाइन हुए थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिया और इनसाइट भी बहुत अच्छी तरह से दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने मॉडरेटर पुदेकर सर ने भी बहुत अच्छी तरह से अपने को गाइड किया और सभी नेविगेट किया अच्छी तरह से, और सबसे अपना जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। तो सभी पैनलिस्ट और सभी पार्टिसिपेट को बहुत ज़्यादा शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए। और आगे ही हम एनिमल संवाद से कंटिन्यूअसली हम ऐसे ही ज्वाइन होतेंगे और बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग जो knowledgeable सेशन है, विल ट्राई टू bring more sessions like this. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Have a great weekend. बिल्कुल।